One of the reason that I smile is it that one. So this picture is relating to the felicitation picture. So if I talk about the case that one of the reason that I smile is only this felicitation picture, because before that I have nothing like that and now I have these things. So if I talk in this way, then this is totally wrong according to me as well. So what I wanna say hereby is, so these things are, if still we are talking about this frame, maybe I have become the CA finalist just few days before, and the felicitation ceremony as well. But but still, this is just mere a part of our happiness. This can't be our happiness in the long run as well. So what exactly I want to say is, still, if you are in a loop nowadays, if you couldn't able to clear the things in the earlier attempt, because I also was in such a loop since a year, since more than a year. But this we can't associate with our happiness. We we can treat it as a part of our happiness, but can't be say that these are only the things which give us happiness. In the long run, we need to look more forward for the things. So, I am again hereby in this video only because of the demand by the student. Because the student or my friend who are students wanna me to discuss about the advanced account strategy as well. And I also wanna to discuss that subject, even though I also want to discuss about the strategic management AISSM paper and the FMECO paper, because auditing I have already done. Whatever I refer the things, how I proceed for the things, everything I have already discussed. But in this video I want to discuss more relating to the advanced accounts, strategic management and enterprise information system, as well as financial management and economic for finance, currently for the November 2023 student who are actually going to appear for group 2. So if I talk about my case, so particularly I literally wanna say these things that this video is particularly I recommend it to the student who are in a loop. And those, if anybody of you may see it as a fresher, if you are going to appear for the first time, so please try to understand what I am exactly trying to interpreting the scene. So do not misunderstood this particular video. So what exactly happened, you now then maybe many of the students already know me that I was stuck in group 2 again and again, and everything such going in a loop. So I don't want to discuss it every time. ठीक है, वो सारा जो भी चल रहा था. But the thing is कि how I prepare everything through the self-study approach or through referring the YouTube videos as well. So what happened exactly कि मेरा तो group 2 का जब मैंने classes ली थी that time, उसका मेरे जब एक्चुअल में मेरी प्रिपरेशन हुई फॉर द ग्रुप 2, तब कोई रेलेवेंस नहीं था. तो हाउ आई प्रिपेयर एवरीथिंग इन अ सेल्फ स्टडी अप्रोच, हाउ आई proceed for everything in a self study manner. So I have not taken any classes again for any of the subject. I want to know, I just want to clear on without investing any further money. So this was actually my approach after a period when I want to prepare at my level. So what exactly happened for the advanced accounts is, so advanced accounts में क्या हुआ था, I am here I am explaining you everything from the assuming a concept of business process re-engineering where I start from the scratch. So what exactly happened कि मुझे advanced accounts में कुछ नहीं आता था. तो what I did the next, तो मुझे concepts के लिए
अगर मुझे कुछ नहीं भी आता है तो मुझे कंसेप्ट्स के लिए कोई टीचर तो पर्टिकुलरली चाहिए, बिकॉज मेरे पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है, नंबर वन रीज़न। और उसके अलावा अगर इफ़ आई गो जम्प डायरेक्टली टू द स्टडी मटेरियल तो आई डोंट नो द कंसेप्ट एज वेल एज आई डोंट नो द सीक्वेंस। तो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कमिंग इन द वे इज, मुझे आती ही नहीं है तो मैं पढ़ूँ कैसे? और अभी मेरे पास पर्टिकुलरली किसी रेफरेंस टीचर या किसी का कोई कुछ नहीं है कि मैं ऐसे कुछ प्रोसीड कर लूँ फॉर द थिंग्स। सो व्हाट आई डिड द नेक्स्ट, आई रेफर्ड एवरीथिंग available on the YouTube from one particular teacher, and that teacher is nobody else other than the same Nitin Goyal son. So one thing I really suggest you, if you are also in a similar situation like me, so what you can do is, for the conceptual understanding, for every, until and unless your concepts are not that much crystal clear, you will not be able to do question in a confident manner. So this is very important part, that our each and every concept should be crystal clear. And even without taking the classes on in a paid form, I able to clear my each and every concept just and just because of seeing Nitin Goyal sir. I personally even message him for such a providing such a free content on a YouTube only. So uh, and in reply, sir even appreciate my effort that letting him know that their strategy, their teachings somehow really appreciating from his side. So what happened exactly कि मुझे नहीं आता था for the advanced accounts paper के लिए, तो what I did the next is I referred each and every concept from the CA Nitin Goyal sir, और वो उनकी बहुत सारी वीडियो पहले अन अकेडमी वाले प्लेटफॉर्म पे मिल जाती थी, अब तो वो पीडब्ल्यू वाले प्लेटफॉर्म पे है, बट बहुत सारी जो फ्री वीडियो है उसके थ्रू मैंने कंसेप्ट्स को प्रिपेयर किया था। चैप्टर वाइज प्रोसीड करती गई फॉर द थिंग्स के लिए। और उसके बाद क्या, एंड या आई ऑल्सो वॉन्ट टू से, प्लीज डू नॉट skip the accounting standards. Please don't try to skip that. एटलीस्ट अगर आप सारे नहीं भी प्रिपेयर कर सकते हो तो एटलीस्ट आप 3/4 जितने टोटल है ना, उसका 3/4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर लीजिए, और देख लीजिए आपको जो टफ लग रहा है ना, उस हिसाब से उसको एक दो को मार्जिन में अगर रख भी दोगे तो शायद वो चल जाएगा, बट उसके अलावा सारे के सारे प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज व्हेन आई स्किप दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब मैंने स्किप कर रही थी, व्हेन आई वाज डूइंग दिस, मतलब उसको स्किप कर रही थी ना, तो आई वाज गेटिंग जस्ट 43-48। तो इन ऑर्डर टू बूस्ट माई स्कोर मोर, मुझे उसको एक टाइम के बाद प्रिपेयर करना पड़ा फॉर द थिंग्स। बट तो मैंने यहाँ पे अभी मैंने पूरा कंक्लूड नहीं किया है अबाउट द एडवांस अकाउंट, आई वांट टू से फर्दर मोर, बिकॉज मेरे पास टीचर का रेफरेंस नहीं था। अगर मैं फ्री में रिसोर्सेज को रेफर भी कर रही हूँ फ्रॉम द यूट्यूब, बट उसके बाद भी मेरे को सीक्वेंस चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरे को कैसे क्या करना है, और क्वेश्चंस होने चाहिए बहुत ही अच्छे वाले। तो मैंने क्या किया कि कंसेप्ट्स के लिए तो मैंने सारी एक चैप्टर उठाती थी मैं। आई आई यूजुअली डू व्हाट, मतलब आफ्टर अ पीरियड जब मुझे लगा कि ऐसा सारा, मतलब सारा कोर्स करके ऐसे काम नहीं हो रहा है, तो व्हाट आई मतलब एक्चुअली डू दैट टाइम इज, एक एक चैप्टर को पढ़ती थी मैं, खुद पे इतना ज्यादा स्ट्रेस ना लेके एक एक चैप्टर को प्रोसीड करूँ विद कॉन्फिडेंस। तो यही वाली चीजें मेरे अंदर बिल्ड ऑन हो रही थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, सी नितिन गोयल सर का, मैं साइड बाय साइड यूट्यूब से नोट भी करती जाती थी ताकि वो मेरे मतलब डायरेक्टली पूरा कंप्लीटली मुझे समझ आता जाए। तो मैंने क्या किया कि जैसे सर की कोई, जैसे सपोज बैंकिंग चैप्टर है, बैंकिंग ले लीजिए, या कोई सा भी चैप्टर मान लीजिए, बैंकिंग चैप्टर है तो मैंने बैंकिंग पढ़ा। उसके बाद क्या करती थी मैं, जो जैसे जैसे सर ने पढ़ाया वैसे वैसे सारा पढ़ लेती थी, मतलब वो पूरा चैप्टर उनकी वीडियो से कवर करती थी, और वो क्वेश्चंस भी कराते थे। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वो साथ साथ में कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन पढ़ा देते, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ आती थी। तो क्वेश्चन और मतलब ऑलमोस्ट क्लास जैसा ही हो गया, बट ऑन अ फ्री बेसिस पे हो गया। तो कंसेप्ट और क्वेश्चन सर के उस लेक्चर से हो जाते थे, साइड बाय साइड नोट भी करती थी, और मैं समझ भी जाती थी और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करती थी। उसके बाद जस्ट आफ्टर completing
दैट वन चैप्टर मैं क्या करती थी, साइमल्टेनियसली स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई वांट टू कन्वे इन दिस पर्टिकुलर वन. प्लीज प्लीज मस्ट गो विद द स्टडी मटेरियल. उसके बाद भी मैं स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करती थी. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर वन, क्योंकि मैंने सर की जो वीडियो है उनसे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट सीख लिए होते थे. ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस भी एक बार के लिए कर लिए होते थे सर के साथ साथ. फिर उसके बाद क्या करती थी, स्टडी मटेरियल पे जाती थी और उसके क्वेश्चन जो है मैं बिना देख के करती थी. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मैं सारे क्वेश्चन करती थी एंड बिना देख के करती थी. उसके बाद आफ्टर कवरिंग द स्टडी मटेरियल एज अ होल, क्योंकि स्टडी मटेरियल, क्योंकि उस कंसेप्ट वाली वीडियो से ही मेरे उस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ऑटोमेटिक होते थे, क्योंकि मुझे समहाउ कंसेप्ट आ जाते थे. तो उसके बाद मैं बिना देख के कोशिश करती थी टू द एक्सटेंट, और ऑलमोस्ट वो हो जाते थे क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे. इन द फ्री वीडियोस में ही काफी अच्छा पढ़ाते थे. उसके बाद क्या करती थी, व्हाट आई डिड द नेक्स्ट थिंग इज, थर्ड स्टेप में मैं क्या करती थी, आई रेफर द पास्ट ईयर पेपर्स. वाई आई एम सजेस्टिंग यू पास्ट ईयर पेपर्स, if you find any of the rankers video, they always talk about the RTP, MTP and all, but मेरे केस में मुझे पास्ट ईयर पेपर्स ज़्यादा अच्छे लगते थे. द रीज़न इज, दो तीन उसके रीज़न है पर्टिकुलरली. एक तो मुझे पास्ट ईयर वाले में क्या है कि मतलब मेरा ग्रुप, मतलब अटेम्प्ट की बेसिस, अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट लगे हैं. तो उसके अलावा तो मेरा, मुझे वो पुराने पेपर करने में ज़्यादा मज़ा आता था. तो एक रीज़न तो वो है कि मुझे पुराने पेपर करने में इस वजह से ज़्यादा अच्छा लगता था. बट उसके अलावा भी जो एग्जामिनर, मतलब जो ऑलरेडी मैंने स्टडी मटेरियल में पढ़ लिया है, बट वापस जब मैं उसको उसी एग्जाम वाले पेपर से देखती थी ना, तब मुझे लगता था कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं एग्जामिनर, मतलब चीज़ वही है बट वो उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ड्राफ्ट कर रहा है. मतलब मैं अराउंड जब से हमारा न्यू अटेम्प्ट आया है ना, फ्रॉम दी मई 2018 से आया आई थिंक. तो मैं मई 18 से लेके जब तक का अटेम्प्ट है तब तक कंटिन्यू कंटिन्यू, मतलब मई 2018 से न्यू अटेम्प्ट का कोर्स आया था. तो मतलब जितने पेपर अवेलेबल है साइट से वो, और अगर आपके पास नहीं भी है ना, पुराने पेपर वाले जैसे कि मई 18 वाले, और ये क्या होता है एक एक अटेम्प्ट वाले हट जाते हैं साइट से. तो बेसिकली हट जाते हैं, जैसे मई 18 का, नवंबर 18 का, मई 19 का, नवंबर 19 का, ऐसे करके, और फिर ऐसे आपको पेपर मिलेंगे. बट बहुत सारे पेपर आपको नहीं अवेलेबल हो पाएंगे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाइए. और जैसे मुझे लास्ट टाइम VSI करके कुछ PDF था, तो उसमें है ना ऑलमोस्ट सब सब एक ही साथ दे रखा था. उसमें सारे पास्ट ईयर के पेपर्स को एक बंच में MTP RTP ऐसे करके सारा क्यूमुलेटिव फॉर्म में दे रखा था. तो मैं, मेरा यही ट्रेंड था कि मैं सबसे पहले वीडियो कंसेप्ट और उसके साथ क्वेश्चंस ये हो जाते थे फ्रॉम द सर लेक्चर. उसके बाद सेकेंड आई प्रोसीड टू द स्टडी मटेरियल पे प्रोसीड करती थी. एंड द थर्ड थिंग विच आई डू इज द पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर, उसको मैं करती रहती थी. और उसके अलावा जो भी मुझे डिफरेंट लगता था ना, तो मैं उसको साइड बाय साइड नोट करती जाती थी कि इस कंसेप्ट से कुछ ऐसा एबनॉर्मल भी पूछ लेते हैं. तो मुझे उसी टाइम थोड़ा आइडिया हो जाता था, और तब लगता था कि हाँ मैं सच में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर रही हूँ. तो ये सारा हो जाता था. फिर उसके बाद क्या होता था, द नेक्स्ट थिंग इज, ये सारा हो जाने के बाद अब क्या होता है कि ऑलरेडी मैंने इतने सारे पास्ट ईयर के पेपर्स कर लिए. अब RTP और MTP, अब मेरे से वापस इतनी सारी RTP, इतनी पीछे वाली की, और वापस इतनी MTP, मतलब मेरा एक ही चैप्टर में कितना टाइम जाता होगा. यू कांट, मतलब यू कैन कैलकुलेट द थिंग्स कितना टाइम जा रहा था. बट MTP पे मैं क्या करती थी, MTP में ओनली करंट अटेम्प्ट की करती थी. और RTP में भी बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी पास्ट ईयर के कर लिए होते थे, तो वो बहुत सारे तो रिपीट हो जाते थे. तो अगर किसी में मेरे को थोड़ा कम कॉन्फिडेंस होता था तो वो वापस कर लेती थी, अदरवाइज उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं करती थी, और RTP बाकी करंट अटेम्प्ट की कर लेती थी. तो इस वजह से मेरा एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को मैं जब रीड कर रही होती थी तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था. और दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैंने पहले ऐसे कभी ध्यान नहीं दिया. आफ्टर, मतलब इस चीजों की वजह से somehow I able to get score as well. तो इसी वजह से मेरा स्कोर आया. आई वॉन्ट टू शेयर हियर बाय समथिंग on the basis which I am saying to you is, I want to share my group 2 marks. जब मैंने group 1 दिया था, बहुत ग्रुप दिया था, तो मेरा that time, मतलब जब group 1 हो गया था बट group 2 नहीं हुआ था. सो आई वॉन्ट टू शेयर माई group 2 मार्क्स. मैं कहाँ थी, बहुत ही ज़्यादा पीछे थी. यस.
सो मेरे जब when I appear for both the groups but I able to clear only group 1. ग्रुप 1 में मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए मैंने ग्रुप 1 में कभी ऐसे अभी इतनी वीडियो नहीं बना रही। ग्रुप 2 रिसेंटली है, दैट्स वाई मैं उस पर ज़्यादा एम्फोसिस डाल रही हूँ, बिकॉज एवरीबडी हु इज इन लूप नाउ दे मे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। तो एग्जैक्टली जब मेरा ग्रुप 1 हुआ था तो मेरे ग्रुप 2 के मार्क्स उस टाइम पे क्या थे, ग्रुप 2 में मेरे एडवांस अकाउंट्स में आई हैव ओनली 27 इन दैट पीरियड। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में 38 थे, ईआईएस और एसएम में 32 थे, और एफएम और इको में 44 थे। तो इन एग्रीगेट इफ आई डू द थिंग्स तो 141 मार्क्स पे थी दिस। मतलब ये मेरा इनिशियली रिजल्ट था ग्रुप 2 का। तो इसके बाद फाइनली आई कंक्लूड द थिंग्स कि मेरा ग्रुप 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक था फ्रॉम स्टार्टिंग से। तो दिस स्ट्रेटजी हेल्प मी टू बूस्ट माई मार्क्स फ्रॉम, मतलब यहाँ से कितना कम मार्क्स थे, आई गॉट जस्ट 41, 141 सॉरी, 141 जब मैंने मतलब नॉर्मल तरीके से चीज़ों को पढ़ी थी, और उसके बाद मेरा स्कोर बूस्ट करने के लिए ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो की। उसमें भी मैंने इनिशियली तो मेरा मतलब ग्रुप 2 में अटेम्प्ट तो लगे थे तो 43 48 ऐसे आ रहे थे, और उसके बाद फाइनली जाके मेरा स्कोर जो है वो 65 पे गया। 65 इसी वजह से गया। उसके अलावा भी कुछ टॉपिक तो मेरे शायद एडवांस अकाउंट में मैंने एज अ पर्सनली कुछ टॉपिक छोड़े तो नहीं थे, बट फिर भी जैसे कि अमलगमेशन और ये वाले जो चैप्टर है, ये वाला उस अटेम्प्ट में तो मतलब पढ़ा, मतलब मुझे 100% कोर्स आता तो था, बट कुछ चैप्टर शायद मेरे रिवाइज नहीं हुए थे या ऐसा कुछ था, तो उस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे तो हुआ ही है। बट आई मस्ट से यू कि फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, और मस्ट डू द पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगेंगे। जब आप वो करोगे तो आपको आरटीपी के जो क्वेश्चन होंगे ना ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे। तो आइदर यू विल कट दैट जो रिपीट हो रहे हैं, और जो कुछ नया होगा तो आप वो कर लोगे। तो दिस इज माई एक्चुअली द एडवांस अकाउंट स्ट्रैटेजी फ्रॉम सेल्फ स्टडी टू टू क्लियर दैट वन। तो क्या किया मैंने, व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट आस्किंग मी अबाउट द एडवांस अकाउंट्स एज वेल। तो मेरा भी एडवांस अकाउंट्स में इनिशियली स्कोर नहीं हो पा रहा था, तो द ओनली रीजन आई एबल टू स्कोर इन एडवांस अकाउंट्स इज ओनली through the self study approach. And self study approach maybe I refer everything from C Nitin Goyal sir lectures. I separately made notebook whatever he taught on the YouTube chapter wise on a free content basis. I note everything along questions के साथ concepts भी मैंने सब नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आई जम्प टू द स्टडी मटेरियल, आई डू एवरी क्वेश्चन बिना देखे, क्योंकि मैं बिना देखे मैंने एडवांस अकाउंट्स की कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, बिकॉज मैं मतलब मुझे उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मैं बिना देख के क्वेश्चन को कर रही हूँ, तो उससे मेरी स्पीड भी बढ़ रही थी और उसके बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। तो स्पीड और कॉन्फिडेंस ओनली मेरा एडवांस अकाउंट्स में स्पीड, और उसका मेरा पेपर भी छूटा नहीं था। एडवांस अकाउंट्स का रिमेंबर, बाकी मेरा यूजुअली पेपर छूट जाते हैं, ऑलमोस्ट सब में छूट जाते हैं, बट एडवांस अकाउंट्स का मेरा पेपर ऑलमोस्ट नहीं छूटा था, बिकॉज मैंने सारा पेपर कर लिया था। उसके बाद एडवांस अकाउंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसमें से मेरे को सारे नहीं आते थे। तो शायद मतलब उस टाइम ऐसा था कि 4 में से 2 आते थे तो 2 हो गए, और बाकी के 2 नहीं आते थे तो शायद छूट गए, या ऐसा कुछ था। एडवांस अकाउंट्स की मेरे पास नोटबुक भी है, बट आई डोंट नो कि मैं उसे दिखाऊंगी या नहीं एट द सेम टाइम, बिकॉज मतलब मैं दिखा तो सकती हूँ, बट वेन एवर आई विल गेट टाइम आई विल थिंक अबाउट दैट एज वेल। तो दिस इज द माई एडवांस अकाउंट्स अप्रोच, हाउ आई एबल टू डील विद एडवांस अकाउंट्स एज वेल। आई नो 65 बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है, ये मतलब एग्जाम्शन है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स है, बिकॉज एडवांस अकाउंट्स में तो वन में स्कोर 90 प्लस मार्क्स। बट जिस तरीके से मेरा चल रहा था, तो कुल मिला के मुझे एग्जाम्शन तो चाहिए थी, तो इस हिसाब से भी मेरी एग्जाम्शन आ गई थी। इफ़ यू प्रिपेयर दिस थिंग more well, then also you may get you may score even more than my marks, because और ज़्यादा स्कोर पॉसिबल है। बट मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की थी, तो इन बिटवीन मेरे थोड़े मार्क्स कट चुके हैं थे दैट टाइम।
तो आई अगेन सजेस्टिंग यू टू रेफर द सी ए नितिन गोयल सर फ्री लेक्चर्स। अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई है तो, क्लासेस हो गई हो तो मैं वो उस केस में आपको दोबारा से रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टडी मटेरियल रेफर कीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स। आई रियली अप्रिशिएट द पास्ट ईयर पेपर्स दैट हेल्प मी अ लॉट इन बूस्टिंग माई कॉन्फिडेंस, स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। बिकॉज बिना देख के जब क्वेश्चन करे, स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस तीनों बिल्डअप हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं है। उसके अलावा और आरटीपी, करंट ईयर के आरटीपी और एमटीपी कर लीजिएगा। और उसके अलावा अगर पिछली वाली ईयर्स की आरटीपी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद भी उसमें कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन मिल जाएंगे, कुछ डिफरेंट मिलेंगे, उसको आप देख लेना उसमें डिफरेंट क्या है। और एक टाइम के बाद अगर सारे मतलब ऐसे सीक्वेंस में करोगे ना, तो सम क्वेश्चंस को ऑडिटिंग कर सकते हो ऑफ द आरटीपी। आई एम नॉट सजेस्टिंग टू ऑडिटिंग द क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल और पास्ट ईयर पेपर्स, नो। आई एम टेलिंग यू कि आप उन दोनों को बिना देख के करो और आरटीपी के क्वेश्चन ऑडिट कर लो तो चल जाएगा काम। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द एफ एम इको स्ट्रेटेजी ना, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद मी एवरी टाइम फॉर द एफ एम इको पेपर। तो एफ एम इको में मेरा जो करंट पासिंग अटेम्प्ट है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, डेट ओनली आई गॉट 45। बट मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, उसी स्ट्रैटेजी से मुझे पिछले अटेम्प्ट में जब मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मतलब पहले वाले में जब व्हेन आई प्रिपेयर द ग्रुप टू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसमें मुझे 58 भी आए थे और नवंबर 22 में 53 भी आए थे। तो वो स्ट्रैटेजी ठीक थी। इस अटेम्प्ट में थोड़ा मेरा कोर्स का आगे पीछे इशू चल रहा था और एफ एम इको का पेपर मतलब मेरा समहाउ कंप्लीट नहीं हो पाता है इस वजह से भी। मतलब इस अटेम्प्ट में मुझे एफ एम का पेपर ट्रिकी लगा और उसकी वजह से मेरा काफ़ी पोर्शन इको का छूट गया, पूरा ब्लैंकली छूट गया। मतलब मैंने इकोनॉमिक्स में जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो जल्दी जल्दी लेफ्ट ऑन किए, बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट पेपर छूट रहा था इस वजह से। और उसके बाद इको के क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए थे बट फिर भी वो मेरे प्रॉपर मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इफ़ यू रिलेट द थिंग्स विद माई मार्क्स, तो यू मे फाइंड कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, बट द स्ट्रैटेजी विच आई वॉज फॉलोइंग एंड फ्रॉम दैट आई ऑल्सो, मतलब मेरा क्लियर बाद में हुआ बट उससे पहले मुझे एफ एम में 58 मार्क्स भी आए, 53 मार्क्स भी आए। और वो स्ट्रैटेजी भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी, तो आई एम शेयरिंग दैट वन ऑल्सो। तो वॉट एग्जैक्टली हैपन विथ मी कि एफ एम और इको, तो इसमें भी अगेन आई प्रिपेयर एवरीथिंग थ्रू द सेल्फ स्टडी अप्रोच। तो सेल्फ स्टडी अप्रोच इन द सेंस आई प्रिपेयर एफ एम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम द सी एन अमित अरोड़ा सर, एंड समटाइम्स आई रेफर फ्यू लेक्चर्स ऑफ नितिन गुरु सर एज वेल। और इफ़ यू टॉक अबाउट द इको वाला पार्ट, तो व्हाट एग्जैक्टली कि मेरे को प्रैक्टिकल तो हो जाता है बट मुझसे थ्योरी वाला पार्ट इतना रिटेन नहीं रह पाता है। और मैं सोचती हूँ कि मुझसे होगा नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, मतलब उसमें इतना टाइम जाएगा और उसके बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि मेरा इको में कितना आएगा, इस वजह से मैं उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रही थी। तो मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वाला पार्ट पूरा एफएम का 60% एफएम को प्रिपेयर कर रही थी एवरी टाइम। और इको के जो प्रैक्टिकल पार्ट है, बिकॉज आउट ऑफ द 40 मार्क्स पेपर, अराउंड 14 to 15 मार्क्स आर ऑफ जस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो मैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे इको के ज़्यादा ध्यान देती थी एंड द सेम थिंग इज एफएम में 60% का प्रिपेयर करती थी। बट वॉट हैपन इज 60% वाले एफएम के पेपर को प्रिपेयर करने के बाद कुछ कुछ आपको मार्जिन रखने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आते ही है समहाउ ट्रिकी, जिसमें लगता है कि इसकी वजह से हमारी एग्जाम्शन मतलब 60/60 स्कोर नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ द सेम थिंग। एफ एम में भी आई फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी। आई रेफर्ड सम ऑफ द कंसेप्ट वीडियो ऑफ दी, मतलब चैप्टर वाइज, एक के बाद एक चैप्टर के बाद में सी एन अमित अरोड़ा सर की। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मुझे लगता था कि और भी टीचर्स की वीडियो रेफर करनी चाहिए, इस वजह से मैं नितिन गुरु सर की वीडियो और एक और लास्ट टाइम में मैंने रेफर की थी ऑफ द विवेक सर करके कोई फैकल्टी थी, डेट टीचर उनकी, उनकी भी रेफर की थी। बट व्हाट हैपन एग्जैक्टली द नेक्स्ट इज, तो मैं उसमें भी सेम अप्रोच यूज़ करती थी जैसे कि मैं एडवांस अकाउंट्स में यूज़ किया था। तो ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने एफ एम से
एफएम से फॉलो करना स्टार्ट किया था, और एफएम उसमें ही मुझे, व्हेन आई फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मुझे उसमें एफएम में 58 मार्क्स आ गए थे। उस टाइम मेरे इवन एडवांस अकाउंट्स के मार्क्स थोड़े कम थे, 43 थे इन डेट अटेम्प्ट, बट मेरे एफएम में ज़्यादा मार्क्स थे। तो मुझे ये स्ट्रैटेजी एफएम के लिए अच्छी लगी थी, इस वजह से मैंने एडवांस अकाउंट्स के लिए भी लेटर ऑन फॉलो की थी। तो क्या हुआ कि मैं कंसेप्ट वीडियोस और उन कंसेप्ट लिखती रहती थी जो जो वो पढ़ाते थे, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तो वो ऑलमोस्ट सब में से कराते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द नमित अरोड़ा सर, हमेशा एक क्वेश्चंस कराते हैं कुछ पर्टिकुलर, यू ऑल्सो मैं फैमिलियर विद दैट टीचर। उसके बाद आई रेफर टू द स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन मैं बिना देख के करूँगी। कंसेप्ट कंसेप्ट के साथ जो वीडियो सर पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो उनको मैं देख के करती थी। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, तो मैं स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करती थी और मुझे सब आ जाते थे, बिकॉज सर वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। तो सेकेंड व्हाट आई ट्राइड इज, मैं स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन बिना देख के करती थी। उसके बाद मैं प्रोसीड करती थी टू द पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स। पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स में अगेन बिना देख के करती थी, अनटिल एंड अनलेस मैं उसको अपनी तरीके से पूरा करना लूँ। अगर बीच में कहीं अटक जाता था तो फिर मैं सोल्यूशन देखती थी और उसको टैली करती थी एंड ऑल सच थिंग्स। एफएम इको की मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, बिकॉज मुझे इको के पेपर्स देने थे, इस वजह से। तो एफएम इको में भी मैं यही अप्रोच फॉलो करती थी, यही वाला अप्रोच फॉलो करती थी। ये बहुत अच्छा अप्रोच है। और फिर आरटीपी, करंट ईयर के आरटीपी और एमटीपी कर लेती थी, और पिछले वाले आरटीपी के जो क्वेश्चन सिमिलर लगते थे तो मैं, मतलब बार बार नहीं कर पाती थी, तो उसको मैं देख लेती थी कि कौन कौन से सिमिलर आ रहे, कोई नया दिखता था तो उस हिसाब से सारी सारी करती थी। मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट्स की तो ऑफ कोर्स करना, जैसे कि अभी May 23 निकला था, तो May 23 से लेके साइट पे जितने अवेलेबल है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप टेलीग्राम पे जाना, आपको करंट मतलब ऐसा मिल ही जाएगा कि, जैसे मुझे अपनी फ्रेंड ने ढूंढ के दिया था, वीएसआई करके सारा पूरा, उसमें पास्ट ईयर एग्जामिनेशन भी थे, आरटीपी एमटीपी सारी चीजें थी। क्या है, अगर हम साइट पे जाएंगे बार बार एक एक डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और एक टाइम के बाद हमें थोड़ा जोर आने लग जाता है, समहाउ वी बिकम लेजी एज वेल। तो ऐसा होता है, इट्स नॉट न्यू इन एनीबडीज केस, ऐसा होता ही है आफ्टर टाइम। तो मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, मेरा मेरा जो प्रिपेयर करने का तरीका था वो यही था। और उसके बाद इको में भी दिस टाइम मैंने इको को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी, इवन लर्न भी किया था, बट मेरा एफएम का पेपर मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा था, और मेरा कुछ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हिल रहे थे, इस वजह से मोर देन, मतलब 70% ऑफ माई टाइम उसी में चला गया, एफएम में और इको में। फिर मैंने जल्दी जल्दी से प्रैक्टिकल पार्ट किए थे, और थ्योरी को ऑलमोस्ट, थ्योरी वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन किए होंगे स्टार्टिंग के, और फिर छूट गए थे, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बट या यू कैन, वॉट एवर यू कैन प्रिपेयर, जस्ट प्रिपेयर दैट वेल। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू share few things about the yes SM as well, because if I 1 second, I really need to drink water this time. So if you talk about my case relating to the EIS SM paper, तो many of the students suffered in EIS और SM paper में भी suffer करते हैं, the same is strategic management और enterprise information system। तो ऐसा था कि व्हेन आई अपियर्ड फॉर द थिंग्स फॉर द ग्रुप टू फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैंने ग्रुप टू फर्स्ट टाइम दिया था ना अलॉन्ग विद द ग्रुप वन, तो उस टाइम मैंने क्या किया था, मुझे एआईएस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना बहुत सारा टाइम एआईएस में दिया था दैट पीरियड में। बट व्हेन आई गेट माई रिजल्ट, तो आई कम टू नो कि मैंने एसएम में तो ऑलमोस्ट
कुछ प्रिपेयर नहीं किया था और ईआईएस में काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर किया था। बट मेरा जो ओवरऑल मार्क्स था ना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था, तो मेरे ईआईएस में अराउंड 31 मार्क्स आए थे, ईआईएस और एसएम दोनों को मिला के। तो आई कम टू नो कि मैंने क्या किया है विथ मी, आई डोंट नो। मतलब मैंने ईआईएस को इतना इतना वास्ट है ऑलरेडी, उसके बाद इतना ज़्यादा पढ़ा। उसके बाद एसएम तो मैंने बिल्कुल इग्नोर करते हुए ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था, जैसे कि सोचा कि बिजनेस स्टडीज होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वैसे ही है, उसमें क्या है उसमें तो कर लेंगे। ईआईएस कितनी इंटरेस्टिंग है उस पार्ट को उस तरीके से प्रिपेयर करके बहुत ज़्यादा पढ़ा था। बट व्हेन एक्चुअली आई गेट द रिजल्ट, तो आई गॉट जस्ट 31 व्हेन आई प्रिपेयर ईआईएस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे अटेम्प्ट लगे हैं, एवरीबडी नो अबाउट दैट। मैं सेकेंड ईयर के आर्टिकलशिप पे आ गई अराउंड। तो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई डिड द नेक्स्ट, तो व्हेन आई अपियर फॉर द थिंग्स, तो वन ऑफ माय कजिन is also along with me. She cleared her both the groups in first attempt as well. तो उसके बाद she taken classes from Udaipur. So what she did actually, she taken classes from the Udaipur, that is also from the face-to-face faculty. और उसने उस टाइम मुझे बताया भी होगा अबाउट द थिंग्स, बट शायद मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया था। तो व्हेन शी एक्चुअली क्लियर द थिंग्स, तो उसने मुझे बताया कि हाउ शी प्रिपेयर, एंड आई फॉलो not exactly the same, but whatever mistakes have I had been actually committed, that उससे मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो मेरी कजिन की जो स्ट्रैटेजी थी ना, दैट हेल्प मी रियली वेल, बिकॉज मेरे को 40 भी नहीं आया था, 31 आया था, आई जस्ट गॉट 31। तो उसकी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की, और उसके बाद मेरे ग्रुप 2 में अटेम्प्ट तो थे ही, बिकॉज मेरे को ऑडिट में तो मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो उसकी स्ट्रैटेजी से मुझे 40 आए इनिशियली, देन 44 आए, एंड देन 50 आए। तो व्हाट एग्जैक्टली आई फॉलो, I want to share that as well, because her strategy helped me. I want that this somehow, अगर किसी का AISSM part में weak है ना, तो that helpful for you as well. So what exactly happened is, मैंने क्या किया था, AIS को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था और SM को नहीं पढ़ा था। तो आफ्टर I could able to relate that where exactly I have a flow, मतलब फ्लू का है, फ्लू, बिकॉज आई वॉज टोटली फ्लूलेस, आई प्रिपेयर दैट मच और स्टिल मार्क्स नहीं आए। तो मतलब मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट उस टाइम एआई से थोड़ा ब्रेक हुआ। तो ठीक है, वो ब्रेक तो हुआ, बट उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी हुआ। तो उसके बाद में एआई को मैंने पढ़ना ऑलमोस्ट कम कर दिया। आई एम नॉट हियर बाय, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू एनी फ्रेशर हियर बाय कि आप स्टार्टिंग से मत पढ़ो। My recommendation for the people who are in a loop because of some another reason, and since so many times or maybe 2 3 attempts, so I am particularly referring these things. If somebody take it, if any fresher take it these things initially, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि they people do इनिशियली ऐसा कुछ कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस थिंग्स। तो व्हाट एग्जैक्टली आई डिड, कि उसने मुझे उसका एक उसने फेस टू फेस क्लास ली थी फ्रॉम द उदयपुर से। आई ऑलवेज रेफर द थिंग्स फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। बट मैंने जब क्लास ली थी और उसका जब मेरा अटेम्प्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, कोई मतलब नहीं लग रहा था, तो मैंने जिससे भी क्लास ली वो सब तो छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट, मुझे अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना था। तो व्हाट हैपेंड इज, तो उसकी जो नोटबुक थी ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो उसकी नोटबुक थी, तो उसमें क्या था, हर टॉपिक जो भी टॉपिक थे ना, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस वाइज जो जो भी टॉपिक थे उसकी नोटबुक में, वो नोटबुक हैंड रिटन थी। उसके अलावा तो मतलब यू कैन इमेजिन द थिंग्स, वो नोटबुक मेरी कजिन की थी, उसमें 1 to 8 चैप्टर सारे लिखे हुए थे, उसने लिखे थे जब टीचर ने क्लास में पढ़ाए थे। और वो मतलब ऐसी नोटबुक थी विच यू कैन कवर इन 1.5 days बिफोर द एग्जाम। तो एक तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इस वजह से मैंने क्या किया, एक तो मुझे उसकी राइटिंग में थोड़ा इश्यू लगता था, मैं उसको एवरी टाइम आई वॉज सेइंग दिस थिंग्स कि
तुमने बहुत फास्ट फास्ट लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो मैंने क्या किया, अपनी नोटबुक बनाई और जो जो मेरी कजिन की नोटबुक में था एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू एट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में मैंने कुछ छोड़ छोड़ रखा था, सेकेंड चैप्टर काफी बड़ा था। उसके बाद व्हाट शी सजेस्ट मी इज कि उसने हर चैप्टर को लर्न किया था वर्ड बाय वर्ड, हर चैप्टर को लर्न किया था वर्ड बाय वर्ड। तो आई वॉज इनिशियली आई वॉज एक्सप्रेसिंग सपोजिंग टू शोइंग माई एक्सप्रेशन कि सारे चैप्टर को मैं लर्न करूंगी क्या, लाइक मी। मैंने अपनी नर्सरी क्लास से भी कभी चीज़ों को लर्न नहीं किया है, रिलेटिंग टू एनी सब्जेक्ट कभी कुछ लर्न नहीं किया है। आई रीड द थिंग्स, अंडरस्टैंड, रीड अगेन एंड अगेन, कहीं ना कहीं जाके मेरे को वो रिटेन हो जाता है। ऐसे ही पढ़ा है मैंने, ऐसे ही प्रोसीड किया है। बट शी वॉज सजेस्टिंग मी कि कि उसने पूरा लर्न किया है फॉर दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हर चैप्टर, और ईएस का भी उनका कोई रेफरेंस था शायद, तो ईएस उसने उससे पढ़ा था। तो ईएस में मुझे सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो ईएस के लिए मैंने इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं था, एसएम के लिए पूछा था, तो उसने लर्न किए थे सारी चीज़ें। तो उसके बाद आई थॉट कि मुझे तो वैसे भी बहुत कम मार्क्स आया था, आई शुड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी दिस टाइम। आई कांट एवरी टाइम मैं अपने इसी एटीट्यूड के साथ चलूंगी कि मैं कभी लर्न नहीं करूंगी। ऐसे लर्न कौन करता है छोटे बच्चों की तरह, लाइक दिस। तो मेरा कोई अच्छा स्कोर नहीं जाने वाला है। तो आई जस्ट फॉलो माई कजन स्ट्रैटेजी। तो मैंने क्या किया, उसकी नोटबुक ली स्टार्टिंग से। तो अब वो सारा लर्न करना, मतलब डायरेक्टली लर्न करने बैठ जाओ, ऐसे भी मेरे से नहीं होता था। तो ट्राई किया, जो छोटे छोटे चैप्टर थे, फर्स्ट चैप्टर छोटा था, थर्ड चैप्टर छोटा था, फाइव चैप्टर भी छोटा था, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा और एक टाइम के बाद मुझे वो समझ आने लगा, क्योंकि वो थोड़ा कंसाइज वे में लिखा था एज कम्पेयर टू द स्टडी मटेरियल। तो मैंने भी फॉलोइंग माई कजन स्ट्रैटेजी सब कुछ लर्न करना शुरू कर दिया। उसके बाद आफ्टर अ पीरियड मैंने क्या करती थी, ये सब तो ठीक है, मेरे को और ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए था और मुझे स्टडी मटेरियल भी पढ़ना था। मतलब मेरे को पता नहीं क्या है, बट स्टडी मटेरियल मुझे पढ़ना ही था कि सारा कुछ छोटे नोट से कवर नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके एमसीक्यूज में अटक जाऊंगी। इस वजह से मेरे को स्टडी मटेरियल तो पढ़ना ही था। तो मैंने क्या किया, आई रेफर एवरी वीडियो ऑफ एवरी चैप्टर रिलेटिंग टू द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू एट चैप्टर ऑफ, refer directly from the free YouTube sources which is available to everybody, and that is from the CA Mrugesh Madlani sir. एंड वन रीजन इज मुझे ऐसा टीचर चाहिए था इन सब्जेक्ट में जिससे मुझे इंटरेस्ट आए। तो सर ठीक है, आराम से चिल होके पढ़ाते हैं, ऐसा इतना मतलब तब बोर होके नहीं करते चीज़ों को। और मुझे तो स्कोर चाहिए था। मैं चाहती थी कि मुझे, मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे साइमल्टेनियसली समझ भी आए। मेरे बस यही इंटेंशन से दो कि मेरे को समझ भी आ रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ एटलीस्ट। अगर मुझे उसी टाइम समझ नहीं, अगर मैं डायरेक्टली स्टडी मटेरियल उठाऊँ लाइन बाय लाइन पढ़ भी लूँ, तो एक टाइम के बाद तो मैं एक तो जोर जोर से चला के पढ़ती हूँ तो मेरा गला ही सूख जाता है उस वजह से। और एक टाइम के बाद मैं एग्जॉस्ट होने लग जाती हूँ एक चैप्टर में ही, क्योंकि वो एक ही इतना बढ़ा जाता है। तो मैं क्या करती थी इसके बाद इज I follow the two strategy, earlier or before, but two strategy. What was that? Is या तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले कोई चैप्टर लिया, जैसे सपोज चैप्टर 8 लिया, चैप्टर 8 लिया, कैसे भी आगे पीछे प्रोसीड कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है। ठीक है, कुछ इनिशियली कोई पढ़े तो उसे ऐसा लगे, बट मेरा तो ऐसा चल रहा था तो मैं आगे पीछे कहीं पे भी मूव ऑन कर लेती थी, मुझे ऐसा नहीं था। जैसे मैंने चैप्टर 8 का वीडियो देखा मृगेश मदलानी सर का, चैप्टर 8 का वीडियो देखा, उसके बाद मैं स्टडी मटेरियल को क्विकली पढ़ती थी। मतलब मैंने जैसे चैप्टर 8 का वीडियो देखा, देन स्टडी मटेरियल को क्विकली रीड करती थी। देन मैं अपनी जो कजिन्स की नोटबुक में है, मतलब कजिन की नोटबुक में जो था लिखा हुआ था उससे एज इट इज लर्न कर लेती थी। तो उसके बाद वो मेरा कंसेप्ट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा हो जाता था और मुझे लर्न करने में थोड़ा इजी रहता था। इस वजह से, क्योंकि मैं डायरेक्टली लर्न करती थी तो मुझे लर्न नहीं होता था, क्योंकि मेरी लर्न करने की स्टार्टिंग से आदत नहीं रही है फ्रॉम फ्रॉम माय प्राइमरी क्लासेस और ऐसे। बिकॉज एवरीथिंग आई रिलेट, अंडरस्टैंड एंड देन राइट। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं हर एग्जाम में फाका लॉजिक करती थी, मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ आती थी। और पर्टिकुलरली तो मुझे ऐसे ही अप्रोच रहा है फ्रॉम फ्रॉम द इनिशियल ईयर्स।
तो मुझे लर्न करने में थोड़ी इनिशियली प्रॉब्लम तो थी, तो मैंने थोड़ा स्ट्रेटजी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था। आई रेफर मृगेश मदलानी वीडियोस, देन उसके बाद स्टडी मटेरियल एंड देन रीडिंग फ्रॉम माय कजिन नोटबुक। एंड आई यू मे बी सरप्राइज फ्रॉम द थिंग, जो भी मेरी कजिन की नोटबुक में लिखा था ना, दैट पार्ट, वो एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल से मैच करता था लाइन बाय लाइन। हाउ आई कैन एबल टू से, बिकॉज लेक्चर तो देख लिया, उसके बाद स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, उसके बाद मैं उसी को लर्न करी थी। तो व्हाट आई फाइंड इन द थिंग्स इज, जो स्टडी मटेरियल जो मेरी कजिन की नोटबुक में था ना, वो स्टडी मटेरियल के जो पीछे क्वेश्चन होते हैं ना, बैक पेपर मतलब सबसे चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो लाइन बाय लाइन जो उसके नोट्स थे वो, और जो स्टडी मटेरियल है वो दोनों की लैंग्वेज सेम, कुछ लाइन उन्होंने काट रखी होती थी कहीं कहीं से, बाकी ऑलमोस्ट सेम। तो मतलब मुझे स्टडी मटेरियल का जो कंटेंट है वो एग्जैक्ट याद होने लग गया। क्यों, अगर मैं डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से लर्न करती तो शायद मैं नहीं कर पाती, और एक टाइम के बाद मुझसे नहीं होता इतना सारा लर्न। बट तो इस वजह से उसके नोट्स शॉर्ट क्यों थे, क्योंकि जो पीछे के क्वेश्चन है उसमें हर एक एक टॉपिक कवर होता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। और उन नोट्स में भी जो वो जो टीचर है वो उदयपुर की फैकल्टी के है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जो भी उन्होंने किया वो मेरी कजिन ने पढ़ा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था अबाउट एनीथिंग। तो मैंने तो बस ब्लाइंडली फॉलो किया, बट व्हेन आई कम टू नो अबाउट एवरीथिंग, व्हेन आई रीड द थिंग्स, देन आई कम टू नो दैट ये और कुछ नहीं है, सब इधर उधर से ही हो रहा है। तो ऐसा चला, तो इन दिस वे आई एबल टू स्कोर इन माई पासिंग अटेम्प्ट 50 मार्क्स। एंड 50, तो मैंने क्या किया कि चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चैप्टर 1 1 3 4 5 6 7 8 इसको तो 100% प्रिपेयर कर दिया इन दिस स्ट्रैटेजी। उसके बाद चैप्टर 2 बहुत वास्ट जाता था, तो चैप्टर 2 का मैंने क्या किया था, चैप्टर 2 का मैंने वो कर लिया था, वीडियो लेक्चर देख लिया था मुकेश मदलानी सर का। समटाइम्स आई रेफर द भावना ऑनलाइन एकेडमी एज वेल, वो भी फ्री में अवेलेबल होता है। पर उनका क्या थोड़ा टाउन तमिल का है, तो किसी को समझ आए या ना आए, और वो पूरा 100% इंग्लिश में होता था। तो मैं तो उनका भी देख लेती थी, मतलब मैं मुकेश मदलानी सर का ऑफकोर्स देखती थी। उसके बाद समटाइम्स और मन कर रहा है ना पढ़ने का उसी चैप्टर को, तो उनका देख लेती थी, ऐसा चलता था। और उसके बाद सेकंड चैप्टर मुझे थोड़ा वास्ट लगा, तो मैंने क्या किया, उसके लिए वीडियो देखा, स्टडी मटेरियल पढ़ा। उसके बाद लर्न करने वाला टाइम आया, तो मेरे पास थोड़े शॉर्टेज ऑफ डेज पड़ रहे थे। तो मुझे लगा कि यार अगर इस चैप्टर को लेके बैठी तो मेरा बहुत कम टाइम बचा है, और मुझे अभी बहुत सारा कुछ और पढ़ना बाकी है। तो मैंने चैप्टर 2 में लर्निंग वाला पार्ट स्किप कर दिया। आई थॉट कि जो एमसीक्यू आएंगे उस हिसाब से जितना मैं कर पाऊंगी सेकंड चैप्टर के लिए उतना कर लूंगी, बाकी किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ा। और 8 चैप्टर से तो इतने भर भर के क्वेश्चन आए, यू पीपल ऑल्सो नो। इवन आई डिस्कस एवरीथिंग इन माई एमसीक्यू रिलेटेड वीडियो ऑल्सो, जैसे कि वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शन। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज थे जो कि मुझे लाइन बाय लाइन इसलिए लर्न थे बिकॉज, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की थी फ्रॉम माई कजिन नोटबुक, एंड दैट इज नथिंग बट द स्टडी मटेरियल के जो पीछे वाले क्वेश्चन थे वो उसी से मैच करते थे। कुछ भी अलग नहीं था, सेम वैसे का वैसे ही था। बस उन्होंने इस तरीके से कंसाइज कर रखा था स्टूडेंट को, वो कैसे पढ़ाते आई डोंट नो, पर जो भी पढ़ा है जैसे भी पढ़ा है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। उसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट द ईएस में कैसे प्रिपेयर किया, तो मेरा तो बहुत सारा टाइम सारा का सारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चला गया। और मैं क्या करती थी, क्योंकि उन चीज़ों को मैंने लर्न किया था उसको रिवाइज करना था, रिटेन करना था, उसका टेस्ट देना था, और उसके बाद वापस चेकआउट करना था फ्रीक्वेंटली कि मुझे कितना याद है। तो ये इस टाइम में मेरा बहुत सारा टाइम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चला गया था। यस, मेरे को स्टार्टिंग से आती थी, बट मेरे उसमें मार्क्स नहीं आते थे, और मेरा मतलब उसके बाद इतना ज़्यादा मैंने उसको कभी नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ा। तो मैंने क्या किया, एआईएस के 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर इस मतलब मेरे पास इतने दिन भी नहीं बचे थे कि मैं 5 चैप्टर को बहुत ज़्यादा पढूं। एंड द सेकेंड थिंग, ईआईएस के लिए मेरे को वो कोई फैकल्टी अच्छी नहीं लगती थी। मतलब मुकेश सर एसएम के लिए मुझे बहुत अच्छे लगते थे, ईआईएस के लिए मतलब ईआईएस के लिए मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगते थे जितने एसएम के लिए अच्छे लगते थे। और ईआईएस इतनी वास्ट है कि मैं एक एक को पढ़ने बैठूं और लर्न करूं तो नॉट कवरेबल फ्रॉम माई साइड। तो मैंने एआईएस के सारे चैप्टर तो प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे सीबीएस अच्छा लगता था, द कोर बैंकिंग सोल्यूशन, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, दैट चैप्टर, और फर्स्ट वाला चैप्टर।
और मैंने क्लाउड वाला जो चैप्टर है वो भी लर्न किया था। पर एग्जाम टाइम पे ऐसा हुआ था कि वो वाला मेरा चैप्टर रिकैप नहीं हुआ, तो उसको मैंने पहले पढ़ा ना पढ़ा बरोबर हो गया, तो वो चैप्टर तो ऑलमोस्ट गया। उसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई डिड इज 5 चैप्टर थे, एक तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा छोड़ दिया है, नहीं पढ़ना है। एक पढ़ा था तो एग्जाम टाइम तक आते आते वो रिवाइज नहीं हुआ और वो छूट गया। मतलब उसका उसको मैंने इनिशियली लेके बैठी थी, मतलब जब ये स्टार्ट की थी तो सबसे पहले उसी को पढ़ा, बट वो एग्जाम पे आते आते पूरा ही छूट गया, तो उसका और मेरे एग्जाम तक का कोई रेलेवेंस नहीं रहा। उसके बाद द अदर 3 चैप्टर्स वर लाइक फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, सीबीएस, और दी फर्स्ट वाला चैप्टर बीपीए एंड ऑल। तो हाउ आई प्रिपेयर, मैंने 3 चैप्टर ही प्रिपेयर किए, और उसमें भी मतलब 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रिपेयर किए थे, किसी के रेफरेंस से प्रिपेयर किए थे, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो मैंने ईएस का ऑलमोस्ट नहीं खोला है। इनिशियली वीडियो देखी थी, फिर देख रही थी स्टडी मटेरियल भी, बट मेरा वाला स्टडी मटेरियल पुराना हो चुका था और यस में चेंजेस भी आए थे, तो कोई मतलब नहीं था। बट मैंने फिर भी किसी के रेफरेंस से, एक पीछे एक मेरी एक रेफरेंस पुरानी थी, सिर्फ और सिर्फ एआईएस के लिए मैंने उस रेफरेंस से पढ़ा था, बिकॉज मैंने किसी टाइम पे एआईएस बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो मुझे वो बुक थोड़ी सी अच्छी लगती थी। इस वजह से मैंने 3 चैप्टर उससे रेफर कर लिए थे। और यस, मैंने क्या किया था कि मैंने मुरुगेश मदलानी सर के पीडीएफ फॉर्म में जो फ्री नोट्स अवेलेबल होते हैं, जो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, शायद मार्केट में ऐसे टेलीग्राम में कहीं पे भी सर्कुलेट होते रहते हैं, और शायद सर किसी वीडियो में भी बोलते हैं कि वो उस नोट्स को ऐसे कुछ कर देंगे। मुझे अगर वो नोट्स आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मे बी मेरे पास अगर होंगे तो मैं उसे उसका लिंक पिन कर दूंगी इन दिस वीडियो एज वेल। तो इन दिस वे आई प्रिपेयर द थिंग्स। और उसके बाद व्हेन आई एक्चुअली अपियर फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द एआईएसएम पेपर ना, तो मेरा बस ऐसा ही था कि मुझे एसएम बिल्कुल रगड़ के आना है, और ईआईएस में अगर मुझे मतलब समहाउ 15 नंबर भी मिल जाए ना, 10 से 12, 10 से 15, 15 इन टोटल, मतलब एमसीक्यू और ऐसा भी, तो भी मेरा काम हो जाएगा। मेरे ऐसी सिचुएशन थी। तो मेरा जब मैंने व्हेन आई एक्चुअली फाइंड द पेपर ना, तो मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर तो बहुत ज़्यादा इजी लगा, बहुत ही ज़्यादा इजी लगा। और मतलब आउट ऑफ दी क्या होता है कि एमसीक्यू होते हैं 30 मार्क्स के, तो उसके अलावा आपके पास 70 मार्क्स का ही पेपर बचता है इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ हाफ ऑफ पेपर कर लो एआईएस और एसएम का, यानी कि 35 35। तो 35 वाले मार्क्स में से मुझे एसएम वाले में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले पेपर में, मैंने चैप्टर 2 छोड़ा था, तो वो एक ऑप्शनल में निकल जाता है। तो इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में नहीं आता हो। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ आता नहीं, मतलब आता है, उसके अलावा आई नो वर्ड बाय वर्ड द थिंग्स, वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था फ्रॉम माय कजिन स्ट्रैटेजी। मैंने सारे नोट्स लर्न किए थे, रिकैप किए थे, रिवाइज किए थे, रीराइट किए थे, सब किया था फॉर द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो मेरा एसएम में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था उस वजह से। 35 मार्क्स वाले पेपर में मुझे 35 का कंटेंट आता था, समाव थोड़ा कम कर लो तो 30 मार्क्स का तो आता ही था। और जो क्वेश्चन नहीं आते थे उसे ऑप्शनल में निकाल दिया, और अगर कोई कंपलसरी में आ भी गया हो तो भी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था मेरे पे, क्योंकि समहाउ आई एबल टू कंप्लीट दैट। और ईएस वाले पेपर में जितना मुझे ईएस का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी लगा था, मई 2023, समहाउ मुझे थोड़ा ट्रिकी फील हुआ था। बट मुझे एसएम के एमसीक्यू में थोड़ा कॉन्फिडेंट था, और एसएम के डिस्क्रिप्टिव पेपर में कॉन्फिडेंट था, और मुझे कुछ मार्क्स और अपने बूस्ट करने थे। तो मुझे जो जो पार्ट आता था वो मैं पहले एसएम किया, बहुत अच्छे से किया मैंने एसएम को। लास्ट वाला आ रहा होता है उसमें मैंने एआईएस किया था, और एआईएस में जितना मुझे आता था, जितना जितना एक्यूरेसी से आता था उस हिसाब से कर दिया। एंड इन दिस वे आई एबल टू स्कोर 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स इन दिस वे, नॉट कंप्लीटिंग द पेपर, बार बार उसे ऐसे रट्टा मारा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरी साइड से ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे को उसमें भी इतने ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो इन दिस वे आई एबल टू स्कोर 50 मार्क्स इन ईआईएस एग्जाम पेपर, क्योंकि ईआईएस में मेरे को जितना आता था उस हिसाब से कर लिया था, और ईआईएस में मेरे को इतना पेपर इजी नहीं लगा था।
तो मैंने सोचा जितने मार्क्स आएंगे वो सारे बोनस के हैं, बाकी जो मेरा मेन मार्क्स का वो क्राइटेरिया है दैट इज फ्रॉम द एसएम पेपर एंड दैट इज फ्रॉम द एमसीक्यू, या इसके एमसीक्यू समहाउ एमसीक्यू, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर में टू द एक्सटेंट आई नो द थिंग्स और टू द एक्सटेंट आई प्रिपेयर फॉर द थिंग्स. So this is my the entire conclusive video, and one more thing which I want to convey hereby is and another thing I never matlab I was in a loop. I know that I was in a loop again and again. I know that I want to clear, but only pressurizing myself may not help me much, because there was a time where I pressurized me to the next level. मतलब I pressurized myself वेरी मच रिलेटिंग टू कि मुझे क्लियर करना है, एट एनी कॉस्ट करना है, बहुत ग्रुप करने हैं, फ्लाइंग कलर्स के साथ करने हैं एंड एवरीथिंग. लाइक इन दैट टाइम आई वॉज नॉट इवेल्युएटिंग मॉनिटरिंग माई परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड एवरीथिंग, और उसकी वजह से सिर्फ स्ट्रेस से बिल्ड हुआ, एक्चुअल में क्लियर नहीं हुआ दैट टाइम. तो what happened is prepare you well. Do not take much stress. Everybody know that you need to clear. Why are you preparing? Of course, in order to clear. तो मैंने अपने माइंड में ऐसा नहीं लाया कि मुझे मतलब करना ही है या क्लियर करना ही है और नहीं करूँगी तो क्या होगा एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ठीक है, दिस टाइम आई प्रिपेयर द थिंग्स. मुझे पढ़ना है, करना है या नहीं करना दैट इज अनदर थिंग. पढ़ना है एंड वट एवर आई एम रीडिंग आई नीड एक्यूरेसी, आई नीड कॉन्फिडेंस. स्पीड तो मेरी कभी अच्छी थी नहीं, उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी. तो इस वजह से दिस इज ओनली. तो डू नॉट टेक मच स्ट्रेस, दैट डू नॉट क्राई फॉर many hours. I also cry even for a month for the very first time when I appeared for both the groups, but I couldn't able to clear even the single one. So that time I even cry for a month, and afterwards I never cry. I know I was in loop. I also know that I was in a loop. Everybody is asking about my attempts and everything. I was मतलब somehow पीछे रह रही हूँ from my friends. ठीक है, whatever be the case, but the only thing is do not take much stress on you. Prepare you well, give the exams, then decide whether it will happen or not. Alright? So bye for this video. Hope my everything relating to the intermediate examination, relating to the auditing paper, advanced paper, ESSM paper, FMECO paper is complete from my side this time at least. I don't want to inculcate again and again relating to intermediate level. I want to read final level now more peacefully, because when I was in inter I think more about final, and when I now actually in finals I think somehow for inter. So I want to read final peacefully. So in this way I am summing up everything. This video is so long I know, but uh, refer that para which you find meaningful for you. All right, so bye for today. Meet you in say final videos.